Hello, sixth standard. How are you all? Doing well, no? What about your studies? It's great? Okay, fine. Will you continue our sixth chapter, substances in daily use? Okay. After finishing this chapter, in this lecture only, I am going to start seventh one. Got it? So, we seen about the vulcanization of rubber. Up to this point, our chapter is over. That we know. Very good. Then manufacturing of rubber. Manufacturing of paper, how the paper is produced. Paper is man-made, no? It's a natural or man-made? It's a man-made. See here, trees, then peeling of the logs of woods, then adding dyes, pearl, pressing the pearls with rollers and paper. See, please see this diagram. पहले क्या होता है, ऊट को कट किया जाता है, फिर उसको कट किया जाता है, पेस्ट किया जाता है, इसमें डाई डाली जाती है, फिर उसको प्रेस किया जाता है, उसके बाद में उसका पेपर बनता है. गॉट इट. पेपर इज द सब्सटेंस और द मटेरियल फॉर्म ड्यू टू द इंटर ट्विनिंग ऑफ द सेल्यूलोज फाइबर इन द ग्रास. कैसे बनता है ये? इंटर ट्विनिंग ऑफ द सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज ग्रास में होता है उसका. वुड रॉक्स एंड वेस्ट पेपर. थस द पेपर इज ए काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ सेल्यूलोज फाइबर. तो पेपर क्या हो गया? सेल्यूलोज फाइबर का नेटवर्क हो गया. हाउ डू पेपर हाउ इज द पेपर मेड? Coniferous trees like pine are used to make the paper. The bark of the logs these trees is the first removed from the wood, broken into small pieces. The mixture of these pieces and some chemicals is kept soaking for a long time. It's helped to form pulps. When the chemical process is completed, the fiber substance from wood pulps are separated and some dyes are added. The pulp is then passed through the roller, dried to form the paper, and finally the वाउंड्स ऑफ रील्स. ओके, तो क्या किया है? बार्क निकाला गया है, पेड़ का बार्क निकाला गया है, उसका वुड कट किया है, फिर उसको पेस्ट बनाया गया है और उसमें जो डाइज होते हैं वो डाले गए, फिर रोलर के थ्रू उसको प्रेस किया गया है और उसको सुखाने के बाद उसके रील्स बनाए गए हैं. ये है मेथड. पेपर एंड वुड आर क्लोजली रिलेटेड. टू सेव ट्रीज इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ पेपर स्पैरिंगली. वुड से पेपर बनता है, राइट. तो वुड और पेपर का रिलेशन बहुत ही क्लोज है. तो हमको अगर प्लांट्स को बचाना है, इफ़ यू वांट टू सेव ट्रीज, देन वी नीड टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ पेपर. वी शुड यूज़ पेपर स्पैरिंगली. मीन्स जब चाहिए, जितना चाहिए उतना हाथ थोड़ा सा टाइट करके ही हमको पेपर यूज़ करना है. ओके, सी लिसन. The some syllabus is reduced by our Maharashtra government. Okay, do you know? Find out. Always remember this kind of things. It's now removed. So that's why I'm not going to explain you now. If you want, I will explain you afterwards. Got it? Tell me on my WhatsApp number. Then synthetic fibers or thread. Now synthetic fibers कैसे बनाते हैं? From which substance in nature we can get the threads or fibers? Automatically it's a cotton, right? What are the clothes made from? It's a cotton. From the time it was first that the artificial could be produced to meet the clothing needs of increasing population, much research and progress has taken place in the field. Innumerable kinds of synthetic or artificial threads are now available. Nylon, dactron, टेरेन, पॉलिस्टर, रेयन आर द नेम ऑफ वेरियस सिंथेटिक थ्रेड्स. कॉटन तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मैन मेड जो धागे है, मटेरियल है, टेरेलिन, डेक्ट्रॉन. ये क्यों? पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत बढ़ रहा था, तो उस पॉपुलेशन को फुलफिल करने के लिए, उनका क्लोथ का नीड फुलफिल करने के लिए आर्टिफिशियल धागे बनाए गए, आर्टिफिशियल थ्रेड्स बनाए गए, जिसका ये नाम है. ऑलमोस्ट ऑल आर्टिकल्स मेड ऑफ नेचुरल फाइबर. द ओल्डन डेज कैन नाउ बी मेड फ्रॉम द सिंथेटिक थ्रेड. इसे सिंथेटिक थ्रेड कहा जाता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, इट्स नॉट नेचुरल. नायलॉन, रेयन, ऑल सिंथेटिक थ्रेड्स. मैनी आर्टिकल्स इन डेली यूज आर मेड फ्रॉम. जो हम डेली यूज़ में बहुत सारे आर्टिकल यूज़ करते हैं, उससे ये थ्रेड्स बनाया जाता है. नायलॉन. These threads are invented at the same time in New York and London. Therefore, the initial NY is New York and LOM means from the London. समझ में? NY means New York and LOM means London. It's combined the name of nylon. Nylon threads have a shine and are strong, transparent and water resistant. They are used to manufacture clothes, fishing nets, rope, etc.
ये वाटर रेजिस्टेंस है इसलिए, और लंदन में, न्यूयॉर्क में बनाया गया इसलिए नेम उसका न्यूयॉर्क हो गया, नायलॉन हो गया। और ये रोप, क्लोथ, फिशिंग क्लोथ्स बनाने के लिए यूजफुल होता है। रेयन, कॉटन एंड वुड पल्प इज डिजॉल्व इन द केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स कॉटन और वुड पल्प को सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डिजॉल्व किया जाता है। थ्रेड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मशीन। एज these threads have shine and strain, they are said to be synthetic silks। तो इसे सिंथेटिक सिल्क कहा जाता है। ये भी कॉटन और वुडन पल्प को कहा सोडियम हाइड्रोक्स में डिजोल्व करने के बाद। ओके, NaOH, sodium hydroxide means NaOH. They appear to be shining bright like the sun's rays and hence they are named as a rayon. Got it? Then Dacron, Terylene and Terene, how they made up of? Various hydrocarbons obtained from the mineral soils are used to make polymer chain or solutions such as polymer is pressed through a strainer with the fine holes. The fibers from after cooling are long and unbroken thread. These threads are twisted to obtain yarn. Different type of chemicals are used to make threads of various properties. These different threads have been named various as a Dacron, Terylene etc. ये आप पढ़ लो, आपको समझ में आएगा, इतना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक नहीं। न्यू वर्ड्स है हाइड्रोकार्बन एंड पॉलीमर चेन। ये सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल ऑयल इज कॉल्ड hydrocarbons and the long continuous chain form a small interlinked chemical unit is called polymer chain। ये बहुत बड़ा लंबा चेन होता है इंटर लिंक ऑफ केमिकल्स, तो इसे बोलते हैं पॉलीमर चेन। एंड सब्सटेंस फ्रॉम मिनरल ऑयल से जो निकलता है उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। See here the useful artificial thread diagram is given 6.4. You must see it. Okay. So advantages and shortcomings synthetic fibers। क्या है एडवांटेजेस देखो अभी। द फाइबर कैन बी मैन्युफैक्चर ऑन मास स्केल, ये तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। कॉस्ट इज लेस, मीन्स कॉस्ट कम है इसका। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और लॉन्ग रन भी होते हैं, मीन्स जल्दी से ख़राब नहीं होते। दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दे आर वाटर रिपेलेंट, हेंस डू नॉट गेट रॉट और वेट, है ना, बहुत अच्छा है। दे आर ड्राई इजीली, ख़राब नहीं होते हैं, है ना, तो वेट नहीं होते हैं, तो इजीली ड्राई भी होते हैं, तो इसलिए हमें यूज़फुल है। दे आर लाइट वेट एंड कंफर्टेबल टू वेयर, लाइट वेट भी है और पहनने के लिए भी कंफर्ट है। एज दे हैव शाइन दे एनहांस द अपीयरेंस ऑफ द वेयर, शाइन है इसलिए पहनने वाले का लुक भी बदल जाता है, अच्छा लगता है। क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स आर व्रिंकल फ्री एंड स्क्रैच फ्री, व्रिंकल फ्री होते हैं इसलिए उसको आयरन करो ऐसा कुछ नहीं है और स्क्रैच भी नहीं आता है, तो इजीली हम उसे पहन सकते हैं। ये इसके एडवांटेज हो गए। शॉर्ट कमिंग क्या है उसके? दे आर वाटर रिपेलेंट, हेंस डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम द स्किन। वाटर रिपेलेंट है तो जो स्वेट है वो, जैसे कॉटन का कपड़ा स्वेट हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है, ये करता नहीं है। कंटिन्यूस यूज ऑफ क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स कीप द स्किन मॉइस्ट एंड विथ कॉज स्किन डिसीजेस, एब्जॉर्ब नहीं होता है तो मॉइस्ट रहेगा तो स्किन डिसीजेस होते हैं, खास खुजली हो सकती है। सिंथेटिक क्लोथ्स आर कंफर्टेबल टू वेयर स्पेशली इन समर, तो सिंथेटिक क्लोथ्स आर अनकंफर्टेबल, नहीं पहन सकते ना समर सीजन में। अगर सिंथेटिक क्लोथ पहनेंगे तो हमको कैसे हो जाएगा ना, स्वेट अगर वो ऑब्जर्व नहीं करता है तो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, ये उस वक्त सहज नहीं है। सिंथेटिक फैब्रिक कैचेस फायर इजीली, सिंथेटिक फाइबर को जल्दी से आग पकड़ लेती है, तो इट्स वेरी डेंजर। इफ दे कैच फायर द क्लॉथ स्टिक टू द स्किन एंड कॉजेज सीरियस इंजुरीज। अगर काम करते समय अगर सिंथेटिक फाइबर पहना है फायर के सामने और जल गया तो बहुत वो जो फाइबर है वो आपको स्किन से चिकटता है, मीन्स अटैच हो जाता है, वो स्टिक हो जाता है, निकलता नहीं है। इट्स वेरी डेंजर और बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। दिस फाइबर्स आर नॉट डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये डीके नहीं होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे कंपोज नहीं कर सकते, तो ये एंटी एनवायरमेंट हो गया ना, तो इसका यूज़ हमको अवॉइड करना चाहिए। आप भी सोच लो अभी। ओके, आई प्रिफर टू यूज़ कॉटन क्लॉथ्स। आपको क्या पहनना है ये आप पे है, राइट। सो हियर आवर 6 number chapter is over. Shall we do continue now? Listen carefully.
nutrition and diet. Lesson number 7. This is lesson number 7, nutrition and diet. Okay, which are the various groups of foodstuff? Name once you see the picture which main constitute of the food to we get from them. ये नया चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, लेसन नंबर 7, 6 खत्म हो गया, आपको उसका एक्सरसाइज लिखना है, आपका होमवर्क है वो, और 7th नंबर का चैप्टर में स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत सारों ने मुझे बोला था कि आप 6 स्टैंडर्ड का ही 6th चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे तो मैंने राउंड अप कर लिया था, उसको वाइंड अप कर लिया था, लेकिन आपके लिए मैंने फिर से वो ले लिया है पॉइंट, समझे आप? तो आपको इस वीडियो में 6 चैप्टर भी है और 7 चैप्टर भी है, राइट? तो बाद में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। हम जो फूड स्टफ खाते हैं, रोज़ रेगुलरली खाते हैं ना, मम्मी बनाती है ना, दाल चावल चपाती रोटी सब्ज़ी जो भी है, तो ये अलग अलग फूड स्टफ होते हैं। दूध पीते हैं हम, एग खाते हैं, फिश खाते हैं, तो इससे हमको वैरायटी ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स मिलता है ना। तो एक ही चीज़ हम बार बार नहीं खा सकते। वाई? बिकॉज आवर बॉडी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, vitamins at the same time, right? So we need to change our food, keep on rolling, keep on change. We need various types of food stuff, so that food stuff we get all kind of carbohydrates and proteins, vitamins, mineral, that is called nutrition. These are the nutritious food to us. Okay, उससे हमको nutrition मिलता है। Obtain energy, growth of the body, to carry day-to-day functions of the body, to fight diseases. We need food stuff for this only. Energy के लिए, बढ़ने के लिए, और डे टू डे फंक्शंस हम करने अच्छे से करें इसके लिए, और डिसीजेस न हो तो फाइट करने के लिए हमको फूड स्टफ चाहिए। न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ। देयर आर 6 मेन nutrients in our food: carbohydrates, fats, proteins, fibers, vitamins and minerals. These nutrients are present in the different food items we eat in differing proportion. Let us learn more about of them. मैंने जैसे बोला ये 6 है न्यूट्रिएंट्स से हमारे लिए है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कैसे इम्पॉर्टेंट है और कहाँ से पाए जाते हैं हम आगे देखेंगे। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये हम हमारे शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा में लगता है। आवर मेन नीड ऑफ एनर्जी, इट इज़ फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट। Hence, our diet include the large proportion of cereals in the form of rice, chapati और रोटी और भाकरी, bread which contains carbohydrates. जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जिसमें होते हैं वो हम खाते हैं, हमको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए इसके लिए। और हमारे भोजन का वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है रोटी, चपाती, राइस, है ना, तो उसको हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और हमको वो खाना भी चाहिए। Then fat, some part of the energy requirement is also fulfilled by fatty foodstuffs such as oil, ghee, butter, and oil, ghee, butter is the essential part of our food. We need it. We get energy in the form of heat from the food we eat. Heat is measured in kilocalories. Heat कैसे measure करते हैं? kilocalories में. Hence the energy in food items is also measured in kilocalories. जो फूड खाते हैं उसकी एनर्जी किलो कैलोरीज में मेजर होती है, और हम जो खाते हैं हमको कितना एनर्जी मिलने वाला है ये भी फिर किलो कैलोरीज में ही मेजर होता है। चिल्ड्रन ऑफ ग्रोइंग एज नीड अप्रॉक्सीमेटली 2000 to 2500 कैलोरीज फ्रॉम द फूड दे ईट। जो स्मॉल बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, उन्हें ऐसा खाना चाहिए कि जिसमें उनको दिन में 2 से 2500 तक की कैलोरीज मिले, ऐसा फूड उन्होंने खाना चाहिए। अगर आप फूड स्टफ देखोगे, कुछ भी आइटम देखोगे बाहर से, जो पैक किया आइटम होता है, पैक्ड आइटम होता है, तो उस पर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है एनर्जी किलो कैलोरीज, कितना किलो कैलोरीज एनर्जी है उसमें, राइट? तो उससे हमको पता चल सकता है कि हम क्या खा रहे हैं, राइट? नाउ प्रोटीन्स, वी नीड प्रोटीन फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ, रिपेयरिंग द वेयर एंड टीयर ऑफ द बॉडी एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम द स्प्राउट, मिल्क प्रोडक्ट्स, द एग एंड फूड। इससे हमको प्रोटीन्स मिलता है, ये भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। हमारे मसल स्ट्रांग बनते हैं ना, किससे बनते हैं? प्रोटीन से। तो प्रोटीन हमको कहाँ से मिलता है? मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है, फिश से मिलता है। ओके, तो हमको ये चना दाल भी होता है, उससे भी प्रोटीन मिलता है, जो तुअर दाल होता है उससे भी प्रोटीन मिलता है, तो हमको खाना ही चाहिए। मिनरल्स एंड विटामिन्स, दे इम्प्रूव द बॉडी रेजिस्टेंट टू डिसीज एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस। द नीड विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर इन डाइट। We obtain these nutrients mainly from the vegetables and fruits. वेजिटेबल एंड फ्रूट से ही हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं।
मिनरल्स मिलते हैं और विटामिन मिलते हैं। सबसे ज़्यादा हम रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, फिर फैट की होती है, उससे थोड़ी कम फैट्स, फिर प्रोटीन, और सबसे कम हमको मिनरल्स एंड विटामिन लगते हैं। द बॉडी नीड्स सेवरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। द टेबल इज गिवन बिलो। यहाँ पे मिनरल है आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। तो फंक्शन क्या है? आयरन का कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है, इससे हुई चाहिए। तो सोर्स है मीट, स्पिनैक, एप्पल, रेजिन्स, और अगर नहीं है तो आपको एनीमिया हो सकता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस स्ट्रेंथन द बोन्स एंड टीथ। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल इज द सोर्स। अगर नहीं है तो बैड टीथ, ब्रिटल टीथ, वीक ऑफ बोन्स होता है। आयोडीन कंट्रोल ग्रोथ ऑफ स्पीड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। सोर्स है रेजिन्स, बीन, फिश, सी फूड। अगर एब्सेंट है ये हमारे शरीर में, डिफिशियंसी है, तो गोइटर हो सकता है। देन सोडियम एंड पोटेशियम मेंटेन द बॉडी वाटर बैलेंस, फंक्शन ऑफ द मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम। साल, चीज, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस आर द सोर्स। एंड इनएफिशिएंसी ऑफ मसल्स अगर हो सकता है, अगर आप में सोडियम और पोटेशियम की कमी है, इन मिनरल की कमी है। तो यहाँ पे विटामिन दिया है, वाटर सोलुबल विटामिन। जो विटामिन पानी में सोलुबल होते हैं उसे बोलते हैं वाटर सोलुबल विटामिन, लाइक बी एंड सी। जैसे लेमन जूस है, वाटर डिजोल्व होते हैं ना। B1, B2, B3, B4, B12 आर द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ विटामिन बी। and water insoluble vitamins are, these are the vitamins insoluble water but soluble in fatty acid। जो हमारे फैटी एसिड है शरीर में, उसमें वो सोलुबल होती है, वाटर में सोलुबल नहीं होते। they get stored the body vitamins A, D and K are the fat soluble vitamins। okay, so here vitamin sources and functions दी गए हैं। okay, ये हम देखेंगे अभी। vitamins and sources of functions। vitamin A, listen, vitamin A, B1, B9, B12, C, D, E, K, these are the vitamins which are very very important। helps in protect eyes, helps to keep skin, bones and teeth healthy। vitamin A कहाँ से मिलता है आपको? कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज, डीप येलो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। डिफिशियंसी डिसीज, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन, एक्जिमा वगैरह अगर होता है, अगर आपकी विटामिन ए की कमी है। तो B1 हेल्प्स टू प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स एंड हार्ट। मिल्क, फिश, मीट, सरल्स, नट्स एंड पल्सेस इज द मेन सोर्स। अगर नहीं है तो बेरी ये नर्व्स डिसऑर्डर होता है, मसल्स वीकनेस होते हैं, इनएफिशिएंसी होती है। B9 ग्रोथ ऑफ द बॉडी, डीप ग्रीन वेजिटेबल्स, पपायाज, कीवीज, इम्प्रॉपर ग्रोथ इन एनोमिया, फॉरगेटफुलनेस, स्लो मूवमेंट होता है। अगर B9 आपको नहीं है तो आपको यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा, पपाया, कीवीज खाना पड़ेगा, तो ये आपको मिल जाएगा। B12 फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट खाने से मिलता है, और नहीं है, कमी है तो एनीमिया हो सकता है। C प्रोटेक्ट्स बॉडी टिश्यूज, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन प्रोटीन, असेंशियल फॉर गम्स, टीथ एंड बोन्स। आंवला, कीवी, ऑरेंजेस आर मीन जो सार टेस्ट में है उससे हमको ये मिलते हैं। अगर नहीं है तो स्कर्वी होता है, या थायराइड प्रॉब्लम होते हैं, डिकेन या हीलिंग वोन्ड्स, अगर कुछ जख्म हो गया तो भरता ही नहीं है। विटामिन डी एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ऑफ हेल्थी बोन्स एंड टीथ। कहाँ से मिलता है आपको? सनलाइट से ही मिलता है, राइट। और फिश, एग और बटर से मिलता है। नहीं है तो रिकेट्स हो जाएगा आपको, बोन का प्रॉब्लम हो सकता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, रिप्रोडक्शन, मेंटेन एफिशिएंसी ऑफ मसल, हुज दिस विटामिन ए। कहाँ से मिलता है? व्हीट ग्राम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टेंडर लीव्स, वेजिटेबल ऑयल्स, राइट। नहीं है तो वीक मसल्स, एब्जॉर्प्शन इन रिप्रोडक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन, स्किन एंड डिसऑर्डर। के हेल्प इन क्लॉटिंग ब्लड। अगर हमको कुछ लग जाए, कट जाए, तो थोड़ी देर के बाद या वहाँ से खून आना बंद हो जाता है ना, तो उसे बोलते हैं क्लॉटिंग। तो ये क्लॉटिंग करने का मेन विटामिन कौन काम करता है? विटामिन के काम करता है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजरी हो जाएगा अगर आपके पास ये कमी है। तो आपको कहाँ मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन कैबेज, ब्रोकोली, स्प्राउटेड पल्सेस एंड येलो ऑफ एग्स।
येलो ऑफ एग्स बहुत लोग खाते नहीं, लेकिन खाना चाहिए, उससे हमको ये मिलता है, राइट। इन द पास्ट Casimir Funk was a scientist who belonged to Poland in Europe. In a scientific article, we read that people who ate brown rice were less likely to get beriberi and those who ate fully milled rice. जो ब्राउन राइस खाते हैं उनको ये बेरी बेरी नहीं होता है, लेकिन जो फुली मिल हम जो खाते हैं मिल राइस उससे हो सकता है. He was able to identify and isolate the substance which prevent the diseases. He named a vitamin. He also proposed that other disorders like scurvy, pellagra, and rickets were also caused by the deficiency of various vitamins. तो vitamins बहुत ज़रूरी है. That's why keep on eating all kind of fruits, vegetables, huh? So your body fulfill your need requirement of vitamins. Okay. Probiotics. These are nowadays it's very popular thing. You know that useful microorganisms which convert milk into yogurt are present in the yogurt and buttermilk. They are called probiotics. Lakhs of microorganisms reside our intestine. Their presence in such large number is essential for our health. See, some useful microorganism is required by our body because some microorganism is present in our body which is eradicated or flushed by this microorganism. That's why we eat regularly curd. Curd खाते हैं ना, कर्ड में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लैक्टोबैसिली. Hence, maintain them in our body. We should include probiotics such as yogurt and buttermilk in our daily diet. When we suffer from loose motion or vomiting, we throw out the microorganism along the intestinal water. Some medicines can also kill them. Therefore, we need to take extra yogurt, buttermilk to restore their number. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में वो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं. इंटेस्टाइन जो है वो साफ़ रखने के लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन कभी डिसेंट्री या कुछ हो जाए तो वो भी निकल जाते हैं. तो उसका नंबर मेंटेन करने के लिए और इंटेस्टाइन का हेल्थ अच्छे रखने के लिए हमको बटर मिल्क योगर्ट खाना चाहिए, राइट. गॉट इट. नाउ बैलेंस डाइट. ऑल दैट वी कंज्यूम ड्यूरिंग अ डे टुगेदर इज कॉल्ड डाइट. डाइट जो हम खाते हैं दिन भर उसे हम डाइट बोलते हैं, बट जो खाते हैं इट्स मस्ट बी बैलेंस्ड. तो उसमें क्या आता है, तो एन इंक्रीज कैपेसिटी टू वर्क, गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ फाइट डिसीज, हेल्प टू प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. तो ये सब जब होता है तभी हम इसको बैलेंस डाइट कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम द हैविंग बैलेंस डाइट वी ऑल्सो नीड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी. यहाँ पे 7.6 फिगर दिया गया है. सबसे ज़्यादा हमको क्या खाना चाहिए, पिरामिड दिया गया है. ये पिरामिड आप देखो और पढ़ो और इस पर शॉर्ट नोट लिख के मुझे भेजो. द बैलेंस डाइट पिरामिड. ओके. हाउ टू गेट बैलेंस डाइट. अभी बैलेंस डाइट कैसे करना है. टू इंश्योर दैट वी गेट बैलेंस डाइट फ्रॉम फूड वी ईट, we can make food pyramid, all which it classified into various groups. The space allotted to each food group is the pyramid depend upon the proportion in which we should include our diet. Hence, we can choose foods from each group daily according to the space allotted in the pyramid. जैसे पिरामिड दिए गए हैं उसी तरह से हम अपना बैलेंस डाइट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसी प्रकार से खा सकते हैं जिससे हमको एनर्जी मिले. Then the fiber. If we select daily diet, which includes vegetables, fruits, sprouts, cereals, according to pyramid, we will also get fibers in sufficient quantity. हमको फाइबर भी चाहिए जिसके वजह से हमारा हेल्थ, हमारे इंटेस्टाइन का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है. What trouble do we have to face if we do not get enough fiber from our daily diet? क्या होगा, हमारा इंटेस्टाइन डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा. What care must be taken to make sure that fiber is not lost or removed from our food we eat. तो हर रोज़ हमको क्या खाना चाहिए, स्प्राउटेड थिंग्स खानी चाहिए, कुकुम्बर खाना चाहिए, है ना. इसकी वजह से ही हम फिट एंड फाइन रहेंगे. एलिमिनेशन ऑफ आवर एक्सक्रीटा भी अच्छा हो जाएगा. वाटर. ऑल्दो all the other nutrients, the body also need the adequate supply of water. For this purpose we must drink milk, buttermilk, lemon juice, शरबत, फ्रूट जूस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर. डिहाइड्रेशन भी नहीं होना चाहिए. हमारे
बॉडी में जितना वाटर चाहिए उतना लेवल मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर मेंटेन नहीं रहा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेंटेन करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। माल न्यूट्रिशन ऑकर व्हेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स of that body need are not obtain the proper properties from the diet. This happens when a person does not get sufficient food or when the diet is not balanced. If one's diet exceed one's need is called overnutrition. अगर किसी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट खाना नहीं मिल रहा है, डिसीजेस हो रहे हैं तो हम उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा खा रहा है, ओवर वेट हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ओवर न्यूट्रिशन। ओके, तो दोनों ही भी गलत है। मॉल न्यूट्रिशन भी नहीं चाहिए, ओवर न्यूट्रिशन भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपका हेल्थ, बॉडी में जो खा रहे हो वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जंक फूड जैसे खाते हो आप, ये बाहर का समोसा, वड़ा पाव, आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, ये दीज आर द जंक फूड। चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर, fats available in a market such as vadas, pakoras, tasty but very very danger. The refined sugar, oil, arrange large proportions. When refined flour made from the wheat or sugar is made from the sugar cane, many nutrients in the wheat and sugar cane is lost in this process. Hence, all we get from this food is energy and our hunger is satisfied. तो हमको कम एनर्जी मिलती है। हमारे हैंगर तो सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन एनर्जी हमें कम मिलती है। नेचुरली इफ़ वी ईट ए लॉट ऑफ जंक फूड यू विल insufficient quantities of the item other food groups. If this happens frequently, our body soon experiences a shortage of proteins, vitamins and mineral, and that may lead to malnutrition. That's why you must avoid junk food. Adulteration of food means क्या होता है कि क्या मिक्स किया जाता है फूड में, जिसकी वजह से उसका कलर, रंग तो चेंज नहीं होता है, लेकिन वो क्वांटिटी बढ़ जाती है और हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है. इन ऑर्डर टू अर्न द मोर प्रॉफिट, चीपर सब्सटेंस ऑफ लो क्वालिटी mixed with the food stuff, these substances are called adulterants, and adding them into food stuff is called adulteration of food. Adulterate may even in poisonous or harmful to our health. ये बहुत पॉइजनस, हानिकारक होता है हमारे हेल्थ के लिए. सच अडल्ट्रेट फूड इज इम्प्योर एंड हार्मफुल एंड सो अनफिट फॉर कंजप्शन. खाने के लिए बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते. तो अडल्ट्रेंट्स क्या क्या मिलते हैं? मिल्क में क्या डालते हैं? वाटर, केमिकल लाइक यूरिया, स्टार्च, चिली में ब्रिक पाउडर, पाउडरेड पम्पकिन, पेपर कॉर्न में पपाया सीड्स, आइसक्रीम में वॉशिंग सोडा, पेपर पल्प, राइस में स्मॉल वाइट स्टोन और पीनट में रेडिश पेबल सैंडस्टोन. तो आप जब जाते हो आपके मम्मी के साथ किराना माल लेने के लिए वगैरह, तो आप देखो आप जो सब्सटेंस ले रहे हैं उसमें कुछ अडल्ट्रेंट तो मिक्स किया नहीं है ना, कुछ उसमें प्रॉब्लम है ना, खाने जैसा है या नहीं है. तो आपको ये देखना है. हाउ टू अवॉइड ओबिसिटी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 4 पॉइंट, ये आपको लिख के मुझे पढ़ना है. यू फर्स्ट रीड दिस, पढ़ना है और मुझे भेज दो एज ए होमवर्क, राइट. तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है. व्हाट वी हैव लर्नड ये हमको पढ़ना है और इसकी बिना पे आपको ये सब लिखना है. आप लिख सकते हो, लिखो और भेजो, आपका स्टडी हो जाएगा फिर. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टिल you may ask me anytime. Okay, till then, goodbye.